Hello everyone. So in my last video of maths, we did the value of a polynomial, zero of a polynomial, and the geometrical meaning of these zeros of the polynomials. So now in this video, we will solve our exercise 2.1 of NCERT of the chapter polynomial. Okay. So the first question is, the graph of y equals to px is given in this figure, and for some polynomials px. Okay, so we have to find the number of zeros of px in each case. As you can see that in the first figure, the graph of the polynomial, this graph of the polynomial is not intersecting x-axis at all. Can you find this graph intersecting the x-axis at any point? No. So the number of zeros of this polynomial in this case will be 0. There will be no zeros of this particular graph of the polynomial px. Why? Because it is not intersecting x-axis at all. Okay, I hope it is clear. Now in the second figure, as you can see, this graph of the polynomial is intersecting x-axis at just one point. This is the x-axis and it is intersecting this x-axis at one point. So the number of zeros for this polynomial will be, for the polynomial px in this graph, will be 1. There is 1 zero of the polynomial px in this figure. Okay. Now in the third case, as you can see, this graph is intersecting this x-axis at 1, 2 and 3 points. So the number of zeros is 3. And what is the reason? Because the graph of the polynomial px intersects x-axis at 3 points. Fine. Now, next figure number 4. Here you can see it is intersecting x-axis at 2 points. So the number of zeros will be 2. Next, how many at how many points it is intersecting? 1, 2, 3 and 4. So the number of zeros is 4. Now the next is 1, 2, 3. At how many points it is intersecting x-axis? 3 points. 1, 2 and 3. So the number of zeros will be 3. Now we will study about relation between zeros and coefficients of a polynomial. Okay. In my last video, I already told you about the zero of a linear polynomial. जो एक linear polynomial होता है, it is of the type ax plus b. जो इसका zero होता है, जो zero होता है किसी भी linear polynomial का, वो क्या होता है? minus b upon a. Means negative of constant term upon coefficient of x. Okay. Now we will consider a quadratic polynomial. अब हम एक quadratic polynomial consider करेंगे. Suppose px equals to ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial. Okay. Now and we will suppose let alpha and beta are zeros of this quadratic polynomial of px. Fine. So we will suppose that alpha and beta are zeros of px. Then we know that x minus alpha, if alpha and beta are the zeros of px, then we know that x minus alpha and x minus beta are factors of px. ये factors हो जाएंगे px के, हमने class 9 में already किया हुआ है. अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज हैं px के, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px. ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे px के. ठीक है. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑल्सो लेटर. फर्स्ट कंप्लीट दिस टॉपिक. सो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट इन द फॉर्म के इज एनी कॉन्स्टेंट हियर एंड हियर वी विल सपोज इट टू बी ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो इसको हम लिख देंगे x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा. यहाँ पर k कोई कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट. तो ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को. ये हमने क्लास 9 में ऑलरेडी किया हुआ है. सो वी कैन राइट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा। ओके, तो k से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा। सो दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, सो अब हम अगर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स को अगर हम दोनों साइड्स के जो हैं टर्म्स इनको हम कंपेयर करेंगे, सो व्हाट विल बी आवर रिजल्ट। देखो यहाँ पर क्या है, ये दिस इज़ द सेम दिस ओनली, अगर इसको हम कंपेयर करें इनके कोफिशिएंट्स को तो ए विल बी इक्वल टू के, ए जो है वो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम इन एक्स के कोफिशिएंट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो b will be equal to नेगेटिव ऑफ के अल्फ़ा प्लस बीटा, इस साइन के साथ हम इसको लेंगे, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ओके, देन एंड c किसके इक्वल हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा। नाउ a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एंड c इज इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा, ठीक है। व्हाट दिस विल गिव अस, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, ए तो के इक्वल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन के, और के किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा सी अपॉन के, और के किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। तो अब हम इससे क्या पता चलता है हमें इससे कि सम ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या है यहाँ पर, ज़ीरोज़ है, सो सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल हो जाता है, माइनस ऑफ बी क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ is equal to c. What is c? Constant term upon coefficient of x square. Okay, so sum of the zeros is equal to negative of coefficient of x upon coefficient of x square, and similarly जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन ए। c का क्या मतलब है यहाँ पर, c इज़ कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है यहाँ पर, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब मैं ये आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 2x स्क्वायर माइनस 6x, अब देखो 6 2 12 प्लस करके 8 आना चाहिए, तो 6 और 2 यही होंगे इसके फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 2x, इसमें से हमने कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 3, और ये -2 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये फिर से हो जाएगा x माइनस 3। ओके, तो दिस विल बिकम 2x माइनस 2 एंड दिस विल बिकम x माइनस 3, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल px ज़ीरो हो जाएगी, कब ज़ीरो हो जाएगी, जब या तो x माइनस 1 ज़ीरो होगा या फिर x माइनस 3 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इस px की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, या तो क्योंकि 2 तो ज़ीरो नहीं हो सकता है ना, इन तीनों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, तो 2 तो ज़ीरो नहीं हो सकता, सो ईदर दिस विल बी ज़ीरो और दिस विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो x माइनस 1 अगर ज़ीरो हो गया तो x की वैल्यू 1 होगी, यानी कि
x की वैल्यू जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगी इस पॉलिनोमियल में तो मेरे पास 0 आ जाएगा, या फिर x की वैल्यू 3 पुट करने पर मेरे पास ये पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब देखो x-1 और x-3 तो इसके फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के, लेकिन x = 1 एंड x = 3 आर द टू जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, क्योंकि देखो इसकी डिग्री 2 है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 2 से ज़्यादा तो इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, सॉरी दो जीरोज आ गए, x = 1 एंड x = 3, तो दीज आर द टू फैक्टर्स and these are the two zeros of this polynomial px. Okay, now you understood the difference between zeros and factors. ओके, सो अब इससे देखो मुझे क्या पता चलता है, सम ऑफ जीरोज अगर मैं निकालती हूँ तो मेरे पास तो 2 जीरो आ गए, एक 1 आ गया, एक 3 आ गया। अगर मैं सम ऑफ जीरोज निकालती हूँ, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा मेरे पास 1 + 3 यानी कि 4। और 4 क्या है मेरे पास, यहाँ से अगर हम देखें इस पॉलिनोमियल से चेक करें तो 4 क्या है यहाँ पर, -8/2, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हो गया ना। तो ये क्या हो गया मेरे पास, माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज, अभी हमने किया पीछे क्या किया हमने, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है ना। और अगर मैं प्रोडक्ट निकालती हूँ इनका जीरोज का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा 1 × 3 = 3 विच इज इक्वल टू, इसको मैं 6/2 लिख सकती हूँ, 6/2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आज हमने क्या सीखा, दैट सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि -b/a आप इसको लिख सकते हो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि c/a। सो दिस वाज द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, कंसिडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल लाइक ax³ + bx² + cx + d। अगर मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है तो इसके एटमोस्ट कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे एटमोस्ट। तो हम वो 3 जीरोज क्या कंसिडर कर लेते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये 3 जीरोज हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के सपोज कर लेंगे। तो इसके इन तीनों से जो 3 फार्मूलाज जो निकल के आते हैं, इनका रिलेशन इनके कोफिशिएंट्स के साथ कैसा है, सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा + बीटा + गामा जो होता है वो होता है -b/a। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या हो जाता है हमारे पास, c/a। अब आपको यहाँ पर b, c और a की वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² है, और यहाँ पर a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x³, और जो यहाँ पर c है, c इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि हर बार वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे जैसे हम जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बढ़ाएंगे तो वहाँ हर बार a, b, c, d की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। तो जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने सिर्फ 1 ही ज़ीरो कंसिडर किया था, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 zeros वी कंसिडर्ड, अकॉर्डिंगली द रिलेशन ऑल्सो चेंज्ड, एंड फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 zeros हमने कंसिडर किए हैं। सो ये अब रिलेशन इनमें चलेगा। और एक और रिलेशन जो अल्फ़ा, बीटा, गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑल द 3 zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी -d/a। ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है इन सब में। सो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको देखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या होता है जीरोज़ का और उनके कोफिशिएंट्स का। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। So in our next video we'll do exercise 2.2. Till then, goodbye, take care.